Hi, this is Karthik, and you're watching me on IndiaGlitz.com. मेरी तो ना बचपन से फैंटेसी है। सुंदर लड़कियां, दो दो चोटियां और तेल। तेल ही तेल, तेल ही तेल, तेल ही तेल. He's a typical Chandigarh ka londa. He's a very shameless guy. He doesn't feel shy to say anything in front of anyone. He'll flirt around with anyone. He would say that you look hot, but in a good way. And I think he's one guy who's explored the world, who's seen everything. He's a dominant guy. He like the guy I played in Pyar Ka Panchnama, like Rajat. Rajat was very submissive, but he's totally opposite to what Rajat was. Like he would anchor Akash. Akash would anchor the group if there's a group. He would lead from the front, and I think yeah, he's वो अपने मर्जी का मालिक है, तो वो वैसा सा एक कैरेक्टर है. एंड ही इज़ अ गाय हु गोज फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली इन द फिल्म for further studies in Stephens College, and there he gets to meet Vani. तो वहाँ से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है, एंड हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स is Akash Vani. Yeah. Obviously, after Pyar Ka Panchnama, Love Sir came up to me and Nusrat, and he told me that you are doing Sathi. Then it was named as Sathi, not Akash Vani. And we were surprised as well, because we didn't have any clue कि after Pyar Ka Panchnama, I hated myself in Pyar Ka Panchnama. So I don't know कि मुझे लगा था मेरी दुकान बंद हो जाएगी. Pyar Ka Panchnama के बाद nobody is going to take me in his or her movie. And I don't know. Yeah, but that was my personal thing. And when Love Sir told me that you are playing Akash, and I was like really shocked, and I was happily shocked. So yeah, that happened after Pyar Ka Panchnama, but before that I didn't have any clue about Akash Vani. I don't know, the thing is ki Akash Vani is very different from Pyar Ka Panchnama, and people have asked me this question again and again, that you're gonna say another monologue in this film or no. And I'm really scared to answer this. If I'm not gonna say a monologue, are they gonna come and watch my movie or not? Because seriously, it's not a sequel of Pyar Ka Panchnama. In the sequel, I'm gonna be saying another monologue which is gonna be bigger than the monologue which was there in Pyar Ka Panchnama. So, but in Akash Vani, yeah, there is no monologue as such. There's nothing related to Pyar Ka Panchnama. Just that Nusrat is there and I'm there, and the whole team of Pyar Ka Panchnama is there. But it's a romantic saga. It's not a comedy film, so where I can be frustrated or in some random way, or say things about girls or anything. So it's a totally different film, and yeah, but people are gonna love it. Comfortable to हो ही जाते हैं. I mean, it's been 2.5 years, and I've known Nusrat since the day I've been in this industry. Like, so I don't know. I mean, I'm really comfortable with her because we have known each other for such a long time, and she's a very good human being and a very good person to have around. I think जिस ईज से एज एन एक्टर ऑल्सो शी इज़ रियली गुड. जिस ईज से उन्होंने नेहा के कैरेक्टर से, प्यार का पंचनामा के कैरेक्टर से आकाश वानी में वो ट्रैवल हुई हैं, और वानी जिस ईज से किया है उन्होंने, आई थिंक सो it's commendable. Like, I really couldn't believe it कि इतनी आसानी से she could turn herself from Neha to Vani. And yeah, so I'm really comfortable with her because she knows my strong points and she knows my weak points. It's the same for me, but and we are really comfortable with each other, and I think so on screen भी दिख ही जाता है कि हाँ comfortable हैं शायद से. But yeah, that's it. We had like 6 to 8 months of workshop for Akash Vani, because the thing was कि even with the thing with Love Sir is that he doesn't want his actors to be, unprepared on sets. So he wants his actors to be well prepared for the movie. And मैंने इनफैक्ट आकाश के बारे में आई थिंक मैंने पूरी बैक स्टोरी लिखी है कि आकाश कैसे चंडीगढ़ में था, उससे पहले कहाँ था, मतलब स्टोरी के फर्स्ट सीन कहाँ स्टार्ट हो रहा है उससे पहले की उसकी बैकड्रॉप पूरी. तो लाइक आई रोट लाइक आई डोंट नो लाइक 100 पेज की तो मेरी बैक स्टोरी है उसकी, कि आकाश के बचपन से लेकर उस तक, कॉलेज की स्टार्ट तक. तो ये सब चीज़ें वर्कशॉप्स में आई थिंक सो होती हैं. एंड आई रियली बिलीव इन वर्कशॉप्स, बिकॉज द थिंग इज कि विद प्यार का पंचनामा पीपल रजिस्टर्ड मी एज रज्जो एंड नुसरत एज नेहा. So I think it was very difficult for both of us to get out of Rajjo and Neha and then get into the character of Akash and Vani.
So these workshops, they really helped us. The thing is, if you have seen the trailer of Akashvani, इस फिल्म में सबसे बड़ा हाथ एक मैं मानता हूँ वो हम लोग हमारे डीओपी का है, जो कैमरामैन है सुधीर सर, सुधीर चौधरी. ही इज़ डन अ वंडरफुल जॉब एज अ कैमरामैन. उन्होंने जितनी अच्छी तरीके से लोकेशंस को शूट करा है और दिखाया है. एक रोमांटिक फिल्म में व्हाट यू नीड इज़ ग्रेट म्यूजिक, एक कॉन्सेप्ट, और आई थिंक सो उसका जो लुक होता है, फ्रेशनेस जो होती है, वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विथ लोकेशंस. तो आई थिंक सो वो सारी चीज़ें क्यूमुलेट होके एकदम से अचानक से एक साथ एडिशन होता है जब सबका, तो आई थिंक तब आपको एक ग्रैंडियर दिखता है कि हाँ ये एक लव स्टोरी है, ये रोमांटिक सागा, रोमांटिक फिल्म है. अब सी इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म. आई थिंक रेस 2 भी चले, आकाशवाणी भी चले, बट दो अगर फिल्में आती हैं, आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है. अगर मेरे को रोमांटिक फिल्म देखनी है तो मैं रोमांटिक फिल्म ही देखने जाऊँगा, मेरे को थ्रिलर देखनी है तो मैं थ्रिलर देखने जाऊँगा. उसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं दोनों देखने चाहता हूँ तो मैं फ्राइडे को वो देख लूँगा, सैटरडे को ये देख लूँगा. तो ऐसा कोई, और दो फिल्म है, आई मीन स्क्रीन इतनी सारी हैं, और वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म कि हमारी फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, लाइक प्यार का पंचनामा, जो उसका बेसिक यूएसपी था प्यार का पंचनामा का, वो उसका कॉन्सेप्ट था. एंड सेम इज़ द केस विद आकाशवाणी. इट्स नॉट अ रैंडम फिल्म, रैंडम लव स्टोरी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दो लोगों की प्यार कहानी है, सेम वो ट्विस्ट हो गया और फिर उसके बाद मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें एक सोशल मैसेज है, बोरिंग नहीं है. सोशल मैसेज बोलता तो लोग बोरिंग, यंग लोग सब बोरिंग सोचते हैं. मैं भी यंग हूँ, मुझे भी बोरिंग नहीं लगा. तो आई थिंक लोग उससे इतना कनेक्ट होंगे अगेन जैसे प्यार का पंचनामा से दे कनेक्टेड. सो दे आर गोना कनेक्ट टू आकाशवाणी एज वेल, एंड दे आर गोना से दैट कि ये मेरे साथ भी हुआ. द वे दे सेड प्यार का पंचनामा देखने के बाद कि ये मेरे साथ भी हुआ, तू ऐसी करती है. तो आकाशवाणी के साथ भी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं. अप्रोच तो होते हैं, आई मीन, बट कभी ऐसा नहीं होता है कि अप्रोच होने के बाद फाइनल होता है. उसमें काफ़ी टाइम लगता है. फाइनल कोई भी अगर अपना पैसा, इतना करोड़ों का पैसा मेरे ऊपर लगाने वाला है या किसी और हीरो या हीरोइन के ऊपर लगाने वाला है, तो वो 100 बार सोचता है. एंड मैं भी उनकी जगह होता तो सोचता. तो आई डोंट नो कि अप्रोच कितना अप्रोच हुआ हूँ और कितने अप्रोच वाली बातें वो सेंसिबल हैं कि मुझे बोलनी चाहिए. तो या कि हाँ थोड़ा बहुत है, बट इतना नहीं है कि मैं बोल सकूँ कि आई एम डूइंग समथिंग. आई थिंक पीकेपी का सीक्वल होगा मोस्टली, एंड उसके अलावा अभी तक कुछ ऐसा पूरा पूरा नहीं है, आधा 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 आधा.